Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, these episodes help us understand companies in a much better way, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. And in this process, we get to know, what is the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and all this helps our investors who can, use this information to take a very conscious investment call when they make an investment in such small SME companies. And friends, today we are going to talk about another interesting company which operates in the auto component space, and the company's name is Munish Forge Limited. And I have the privilege of having the top management and the promoter team, Mr. Davinder Bhasin, who is the managing director of the company. Davinder Hello, ji, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for your time. And Thank we you, also sir. have Mr. Dev Arjun Bhasin, who's the executive director and the CEO of the company. Dev ji, welcome to you also. Thank you so much, sir, for having us. Yeah. So, sir, first question, which is very elementary and which is very basic for our investors to understand. If you could tell us, sir, what is the, what are the kind of components we make when we say that we are a forging company? Sir, थोड़ा बहुत अपने business के बारे में समझाइए, अपना business model कैसा है? Or one more thing which is very related is that, sir, how did this business journey start? Is it a first generation company, or was it started by earlier by your father, and then you took it over? सर इसके बारे में कुछ बताइए बिजनेस जर्नी के बारे में. Yes, sir, you're right. My father started actually business. So this is Dev Arjun is the third generation. So my father started business in 1942 by supplying to the Indian defense at that time. And when the British took India in 1947, so we made all the medals and badges, buttons for them, and the Ashoka Loyal. So I started this business as a trainee in 1978 and put up Munish in 1986. Okay. So it was started as a forging company, then we put up a casting company, and then we went into applications. And the major verticals which we have, earlier we started with the scaffolding in 1990, exporting to UK and the rest of the Europe. So started with the scaffolding, which is still continuing. We have very old customers. Then we started the flanges to USA, pipe flanges. This is for oil and gas. Okay. So that is used to be our major business, still our major business. So that was the second which we started. So 2014 we started our defense business, which we are good at, like since my father started, and it's in our DNA. So उसको हमने 2014 में स्टार्ट किया, और 2014 में फिर हम लोगों ने काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो टैंक के ट्रैक्स होते, चेन जिसको बोलते हैं हम लोग इन सिंपल टर्म्स. So टैंक के जो ट्रैक्स हैं, तो we are the only company which is making for all the tanks in India. So then we started making further growing in the field. So उसमें फिर हम लोगों ने bomb shells बनाने शुरू किए, bigger sizes only, not the very small sizes. Okay. So shells abhi hum bana rahe. So then we are getting into the railways. So 4 verticals you can say we have. And of course into the OE business, like Sonalika, like JCB. So these companies are attached with us. मैं समझ गया. इनफैक्ट सर काफी अच्छी तरह से आपने हमको बताया. सर मुझे बताइए कि ये मान के चले कि डिफेंस और बेसिकली जो आपने अभी फार्म इक्विपमेंट के 2-3 नाम लिए, 2-3 कंपनियां ली, तो कैन वी एज्यूम दैट सर यहाँ पे ऑटो का ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बट यू आर लार्जली ऑन द डिफेंस साइड एंड मे बी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड. सो इज दिस थिंकिंग राइट फ्रॉम माय साइड? ऑफ कोर्स यू आर राइट. ऑटो में हम लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी our major focus was on defense and railways. Okay. And then we got into the excavator, earth moving, with JCB, agriculture we are doing with Sonalika, Preet and tractors. जस्ट सर एक बात बताइए, अभी जो हमारा FY25 का रेवेन्यू करीबन 175-178 करोड़ का टॉप लाइन है, तो उसमें से सर मोटा मोटी डिफेंस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा टॉप लाइन की बात करें तो? चूंकि लाइक आई सेड it took us many years, जो हमने पार्ट्स जो बनाए, बड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स, अच्छे पार्ट्स बनाए हैं,
तो उसके पहले साल हमारा 2 करोड़ का सिर्फ टर्नओवर थी ओनली फॉर डिफेंस. So last year we did 22 CR to the Indian defense. So defense ka for 24-25 was somewhere around 12 to 13% of our business. Okay. And which were the other sectors which contributed to the top line? See, majority is from flanges and scaffolding. Those are our legacy products, our business. Okay. With domestic coming majorly from defense and a little bit from agriculture. ठीक है, समझ गया. सर अभी बताइए कि हमारे मोटा मोटी कितने एक्टिव कस्टमर्स होंगे, क्योंकि आपकी कंपनी काफी पुरानी है, यू ऑल हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ हिस्ट्री. मुझे बताइए सर, एज ऑफ नाउ कितने कस्टमर्स होंगे? ये जो 175 करोड़ का टॉप लाइन है, हाउ मेनी कस्टमर्स हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू दिस टॉप लाइन? सर उसमें हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स जैसे मैंने आपको बताई हैं. तो जैसे आप फ्लैंजेस में जाएंगे, दिस इज ऑयल एंड गैस. So there are very major companies, we call them master distributors. They all over and distribute throughout US or Canada. ठीक है. So 4-5 major companies हैं and all 4-5 companies are buying from us. Okay, समझ गया. In scaffolding, in different segments. So in scaffolding में 4-5 companies हैं, उनमें से 2-3 हमसे ले रही हैं. And then there are smaller customers also. World over. If you count them, they are many numbers. डिफेंस में 4-5 कंपनीज हैं जो ये हमारे पार्ट्स खरीदती हैं और 4-5 को हम लोग दे रहे हैं. ये समझ गया. मेरे को एक ही बात बताइए सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इज इट दैट यू गिव इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स इट टू द फाइनल कस्टमर? ऐसा धंधा अपना होता है? That is for flanges and scaffolding, not with the defense. तो डिफेंस के लिए आपकी डायरेक्ट सेल होती है? जी, डायरेक्ट होती है. रेलवे की भी डायरेक्ट होती है. अच्छा, ओके, समझ. अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्मली हमारा जो बिजनेस है, इज इट ऑर्डर बुक बिजनेस ड्रिवन और रोलिंग ऑर्डर्स हमको कस्टमर से मिलते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं? हाउ डज द आई मीन प्रोडक्शन वर्क फॉर यू? जी सर, we always do make to order. We first get the order and then make the material. और सर दूसरी बात, जब हम फोर्जिंग बनाते हैं डिफेंस के लिए या फ्लैंजेस बनाते हैं, फ्लैंजेस तो ऑफकोर्स सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन डिफेंस के लिए तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है. सर मुझे बताइए, आर यू इन्वॉल्व विद द डिजाइन ऑफ द फोर्जिंग, या आपको डिजाइन दी जाती है उसके हिसाब से आप फोर्जिंग बनाते हो? नहीं सर, फोर्जिंग का डिजाइन नहीं दिया जाता. जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जैसे गवर्नमेंट हमको देती है कि आपको ये बनाना है, अब वो हमको देखना हमको कैसे बनाना है. अच्छा, ठीक है. Then we do the designing ourselves in-house, our tool designing and process designing. नहीं, वही मैं पूछ रहा था कि आपकी R&D के बाद वो प्रोडक्ट बनता है, which is very important. और सर ये जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, यानी जो डिफेंस के लिए, उसके बाद ऑयल एंड गैस के लिए, सर ये सारे बेसिकली आर ऑल रेडी टू फिट मशीन्ड कंपोनेंट्स, और इसमें थोड़ी मशीनिंग क्लाइंट के साइड से होती है? नहीं सर, रेडी टू फिट है, रेडी टू यूज. अच्छा, रेडी टू फिट. ओके. तो सर उसका मतलब सर आपके पास थोड़ी बहुत मशीनिंग कैपेसिटी भी होगी फैक्ट्री में? नहीं, फुल कैपेसिटी है सर. What is the total install capacity for forging? I understand you all are also doing castings, right? Yes. What is the total install capacity for forgings and castings? If you could please tell us. So it varies depending on product to product, but it's somewhere around 25,000 tons per annum to 35,000 annum. उसके बीच में depending on fluctuates. और सर मोटा मोटी हमारा लास्ट ईयर कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा? Capacity utilization last year was around 50%. तो इसमें we have a lot of room to grow. Understood. सर दूसरी बात वो पूछनी थी कि जब हम कोई नया ऑर्डर क्लाइंट का लेते हैं या एग्जिस्टिंग ऑर्डर लेते हैं, तो हमारा जो प्राइसिंग होता है, इज इट कॉस्ट प्लस मार्जिन? यानी मान के चले कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, तो इज इट आई मीन आर दीस कस्टमर्स अलाउइंग अस एनी प्राइस इंक्रीज, या कोई फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे ही सब कुछ चलता है? हाउ डज इट वर्क? तो सर our customers have been working with us for a very long time. तो अगर बाय चांस कोई मतलब एकदम से unnatural increase होती है, तो there is a discussion that can be had. But otherwise जब एक बार प्राइस हमने फिक्स कर ली, तो फिर वो प्राइस पे रहता है. तो उस पे अगर
फिक्स प्राइस हो। ठीक है, समझ गया सर। अभी मेरे को थोड़ा सा आई वांट टू अंडरस्टैंड द मैक्रो अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बोथ ऑफ यू सर। फोर्जिंग्स और कास्टिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो सेक्टर्स हम केटर करते हैं, डिफेंस है, रेलवे है, ऑयल एंड गैस है, ये बहुत बड़े ग्रोइंग सेक्टर्स है इकोनॉमिकली। सर आपके हिसाब से अगले 3-5 साल में क्या ग्रोथ लग रहा है आपको? ये सेक्टर में किस प्रकार का ग्रोथ दिख रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोथ? इफ यू कैन प्लीज टेल अस। सर इसमें एज वी सी देयर इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ coming from these sectors, like you rightly said. And because as a strategy, we entered into different segments. And even the selection of products, we selected those products where we thought that the growth will come. So stagnancy nahi aani chahiye. So like the shells which we are making, they're very slow in making. But when you're using them, probably you can use 60 shells in 1 second. करेक्ट। So there is a lot of consumption. So we see a lot of growth coming from this section in all these sections: the defense, railways, flanges, oil and gas, scaffolding, of course. सब जगह बहुत growth आने वाली सर। बिल्कुल। नहीं, आई थिंक आपने सही कहा कि सर टेलविंड्स तो बहुत स्ट्रांग है डिफेंस के सेक्टर में, रेलवे में, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट है। सर मेरे को एक बात और बताइए, नॉर्मली जब डिफेंस के लिए आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आपने बोला कि हम बॉम्ब शेल्स बना रहे हैं, तो सर नॉर्मली प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स नॉर्मली क्या होते हैं? यानी अगर किसी को नया वेंडर बनना है तो नॉर्मली व्हाट इज द टाइमलाइन बिफोर ही गेट्स अप्रूव्ड एज अ वेंडर? क्योंकि डिफेंस की बात अगर आप करते हो तो उसमें काफी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी नॉर्म्स होते हैं। So, sir, just tell us what is the normal pre-qualification process for getting into the defense pack, because it's not an easy business, according to me. It's very difficult and complicated business, and you have to spend a lot. You have to work a lot on that. So, like जो tank की chain जो हमने बनाई है, so it took us one part. It took us like 5-6 years to get the approvals. तो अभी हमने एक ऑर्डर सप्लाई किया 2015 की प्राइस पे, so because the price cannot change it. And so that kind of thing, this is the entry cost, you can say. Once you in there, it's difficult. You have to quote for the tender. पहले टेंडर करेंगे, फिर उसमें से आपको L1 आना है, लोएस्ट प्राइस पे आना है, फिर आपको चेक करना है। जैसे टैंक है, T90 टैंक की जो चेन है, उसको 2500 किलोमीटर टेस्टिंग करनी होती है। तो 25 किलोमीटर वो चलाते हैं, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 1 ईयर इन इटसेल्फ। इसलिए थोड़ा टाइम उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर आपको सैंपल पास कराना है, इन नॉर्मल टर्म्स आई विल से इट विल टेक यू 2 years मिनिमम। ओके, तो बेसिकली लंबा प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। सर मुझे एक बात बताइए, आपको ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं पूछूंगा नहीं, बट ये जो बॉम्ब शेल आप बना रहे हो सर, कैन वी एज्यूम दैट दीज आर बेसिकली मेड फॉर द आर्टिलरी शेल्स? ऑफ कोर्स ये सारे वही हैं सर, हम लोग जो बना रहे हैं। जैसे 155 mm अभी हमने बनाया है, which we have not supplied so far, अभी हमने डेवलप किया। लेकिन जो पुराने हम जो बना रहे हैं 105 mm शेल, तो इतना बड़ा शेल होता है, तो वो सारे आर्टिलरी में चलते हैं। और हाँ जी, 155 जो अभी हमने बनाया है शेल जो है, उसकी वर्ल्ड ओवर बहुत डिमांड। बिल्कुल सर, नहीं ये बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेरी वैलिड है सर। ये तो सभी जानते हैं कि आर्टिलरी शेल्स इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस होती है। सर मुझे बताइए, अभी फाइनेंशियल्स तो मैं बाद में आपको पूछूंगा, पर मुझे बताइए कि सर हमारे बिजनेस में अगर डिफेंस है, ऑयल एंड गैस है, या मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग है, सर व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू द कस्टमर? यानी कस्टमर हमको अगर रिपीट बिजनेस रेगुलरली देता है, तो वो क्या, किन चीजों के लिए हमको पैट्रोनाइज करता है? इज इट क्वालिटी, इज इट डिलीवरी टाइम? सर एक दो चीजें क्वालिटेटिव हमको बताइए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर कंपनी इन अ मच बेटर वे। सर एवरी कस्टमर, मतलब कोई बड़ा सा बड़ा कस्टमर हो जाए, छोटा से छोटा कस्टमर हो जाए, एवरीबॉडी वांट्स क्वालिटी एंड डिलीवरी। उसके अलावा द अदर थिंग्स दैट दे आस्क फॉर इज द ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी। तो हमारा स्टार्टिंग से यही चीज रही है कि वी डोंट टेक आवर कस्टमर फॉर अ राइड, तो उन्हें हम फ्रंट विद देम, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर यूएसपीज फॉर आवर कंपनी।
No, no, understood. I think thanks for the information. Sir, now let's talk about the financials. I think numbers have been very robust in FY25, 178 crores top line and compared to 161 crores. बट सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट 14 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है जो पिछले साल 4.55 करोड़ था. सो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस बिगर जंप इन द प्रॉफिट? क्योंकि टॉप लाइन तो डेफिनेटली बढ़ा है बट प्रॉफिट आपका कहीं उससे बेटर बढ़ा है. सो सर वाज इट बिकॉज ऑफ अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स, बेटर मार्जिन्स? सर कौन सी ऐसी वजह थी कि प्रॉफिट इतना अच्छी तरह से बढ़ा? सर इफ यू कैन टेल अस. There are two reasons for this, sir. One is, as you said, a better product mix. We have been focusing on our higher margin products like defense. So usse काफी increase आया है. Secondly, there are a lot of activities that have been happening in the background at our level as we were investing in new machinery, replacing our obsolete machinery. अभी पीछे हमने 2 megawatt का solar project लगाया है plant के अंदर. So all of these help us grow our bottom line. तो उससे काफी फायदा है. Okay. So basically, it's a mix of everything: better margins and better kind of volume, and I mean more jobs done by you. Carry on. Okay. Now we come to the most important question of the interview, sir. If you can tell us something about the company's IPO, because I think this is a validation that all your hard work is getting paid off. Because very soon you all will become a public limited company. Sir, कितना पैसा बाजार से हम उठा रहे हैं? और what is the main objective of raising this money? इसके बारे में बताइए. Sir, this will be around 74 CR जो हम लोग बाजार से, और इसमें मेजॉरिटी जो है because we need, जब आप डिफेंस से काम बढ़ाना चाहते हैं तो डिफेंस के लिए आपको पैसा ज्यादा चाहिए होता है. इसके लिए चूंकि उनका साइकिल टाइम जो है थोड़ा लंबा है, तो लंबा होने का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, पेमेंट टाइम भी थोड़ा ज्यादा है, होल्डिंग पीरियड जो है रॉ मटेरियल का भी ज्यादा है. तो ये सारी चीज को मिला के तो वी नीडेड फाइनेंस. तो देयर वर टू ऑप्शंस. गो फॉर आइदर बैंक लोन्स पे चले जाएं जैसे हम लोग जाते रहे हिस्टोरिकली, और वन ऑप्शन वाज गो टू द एसएमई आईपीओ. तो समझ. ज्यादातर ये पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जाएगा या इसमें कोई नई फैक्ट्री या नया मशीन अभी आप ऐड करोगे? कुछ मशीनें सर ऐड करेंगे जो जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन बैलेंसिंग वगैरह के लिए. अभी बहुत ज्यादा केपेक्स की हमको जरूरत नहीं है. लाइक यू सीन अभी 50% कैपेसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं. तो देयर इज अ रूम टू ग्रो विदाउट इन्वेस्टिंग इनटू केपेक्स. तो हमने 6 करोड़ रुपए हम लोग केपेक्स में लगाएंगे. 11-12 करोड़ रुपए हम लोग वापस करेंगे जो टर्म लोन्स है पुराने. तो बाकी मेनली जो है वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोगों ने ये आईपीओ लेके आ रहे हैं. समझ. नहीं, अच्छी बात है सर. सर अभी जब वर्किंग कैपिटल की बात हुई है तो बताइए सर, नॉर्मली डिफेंस का तो मैं जानता हूँ कि सर वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा लंबा होता है, लेकिन दूसरे जो आपके कस्टमर सेगमेंट्स है वहां पे सर अगर मोटा मोटी पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो नॉर्मली प्रोडक्शन आप करते हो, फिर कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, फिर वो आपको पेमेंट करता है. तो नॉर्मली सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? सर मेनली अगर आप ऑन एन एवरेज बेसिस पे अगर आपने जाए तो 5 to 6 मंथ्स लेके चलना पड़ता है. अच्छा, तो काफी लंबा है. 5 से 6, यानी इन्वेंट्री को भी पकड़ ले, इन्वेंट्री और फिर डेटर्स को पकड़ ले. हाँ जी सारा मिला. नॉर्मली इन्वेंट्री कितनी रखते हैं हम लोग? यानी मोटा मोटी डिफेंस के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं या ऑयल एंड गैस के लिए, तो इन्वेंट्री हम कितना नॉर्मली स्टॉक में रखते हैं? नॉर्मली जो हम लेके चलते हैं जो साइकिल टाइम हमारा जो है दैट इज 5 to 6 months. सर कुछ कोशिश हो सकती है, एंड जस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ये 5-6 महीना कैन वी स्लाइटली ट्राई टू कंप्रेस इट, क्योंकि सर 5 to 6 मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड. जब अगर आपकी कैश काफी वर्किंग कैपिटल में अटकती होगी, अभी तो आप पब्लिक इशू कर रहे हो, बट सर कैन इट बी पॉसिबल कि भाई थोड़ा सा डिफेंस को छोड़ के जो दूसरे कस्टमर्स है उनसे थोड़ा सा पैसा जल्दी आपको मिले, ऐसा कुछ करने की आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी या ऐसा ही रहेगा? नहीं सर ऐसा होता है, और हम लोग चूंकि हमारे ट्रेड या स्कैफोल्डिंग में अगर हम जाते हैं तो कस्टमर्स डिमांड क्रेडिट आल्सो, व्हिच वी डोंट. सो दे डिमांड 60 days 90 days credit which we don't offer, but still customer ही है. और there are certain big companies वो they pay us after 60 days from the date of receipt. Correct. लोगों से कैश पेमेंट होती है, वो भी आप दे वांट टू सी द मटेरियल, जो कि यहाँ से चलेगा अब क्या पहुंच रहा है, उसको 30 दिन 45 डेज. अगर कनाडा जाएगा तो
और भी ज्यादा दिन लगते हैं। तो दे वांट टू मटेरियल जब डॉक करता है शिप, देन दे स्टार्ट मेकिंग द पेमेंट्स। मटेरियल तो देयर इज नो कॉस्ट, तो वी ट्राई टू डू दैट। जी तो सर फाइनली और एक क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड द इंटरव्यू। सर मुझे बताइए कि यू हैव बीन द मेन प्रमोटर, आप दोनों, आई मीन मुझे बताइए सर, फंक्शनल एरियाज में आप कौन सा एरिया देखते हो कंपनी में? नए कस्टमर्स को कल्टीवेट करना या एग्जिस्टिंग बिजनेस को नर्चर करना? फंक्शनली सर आपका रोल क्या है अभी कंपनी में? मेरा सर जो रोल है अभी, तो जब से देवर्जुन ने काम संभाला है, तो मेरा ज्यादा रोल मेंटरशिप का रह गया सर। बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी एंड मेंटरिंग, तो स्ट्रेटेजिकली हम लोग फोकस करते हैं कि उसको क्या करना है, फॉलो दैट। ठीक है, ठीक है, समझ गया। और देव जी आपका क्या रोल रहेगा? बिकॉज़ नाउ यू मस्ट बी लुकिंग आफ्टर द ऑपरेशन साइड और एनीथिंग एल्स व्हिच यू मैनेज? Yes, sir. So purchase and operations is directly under my control. I'm also following finances and other process like HR. So total reporting मेरे को रहती है for the plant and for the company itself. And I report directly to him. तो कोई भी problem होती है, कुछ भी होता है, I can turn to him for guidance. But otherwise the team reports to me. ठीक है सर। हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अभी कितनी होगी मोटा मोटी, टोटल वर्कफोर्स और एम्प्लॉयज पकड़ के? Around 750 to 800. अच्छा, 750 to 800। ठीक जी सर, आखिरी सवाल। बेसिकली वी हैव सीन कोविड एंड नाउ थिंग्स हैव कम बैक टू नॉर्मल सर। अभी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अगर जिस प्रकार से अभी आपने बोला कि डिफेंस, रेलवे, ऑयल एंड गैस, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द इकोनॉमी। और डिफेंस में तो हम सारी बातें सुनते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो गवर्नमेंट का फोकस और भी बढ़ गया है डिफेंस के ऊपर। सर मुझे बताइए, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क व्हिच यू मॉनिटर एवरी डे, और अभी तक सर आपने उसको कैसे संभाल के रखा है? See sir, because there are different verticals, और हमने different verticals शुरू भी इसीलिए करे थे कि they have their it's individually they have different risk factors. So for example, for our Panjin scaffolding business जो usually export है, so the current geopolitical situation could be a risk कि उसमें trade पे and exports पे impact आ सकता है. But then that is a boom for our defense business. तो so the company itself doesn't suffer from one issue. Small verticals उसमें जो problems आती हैं, the other and takes over it, उसमें balance हमारा बनता रहता है company. ओके, ठीक है। तो उसका मतलब रनवे काफी बड़ा है। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट द नेक्स्ट 2-3 इयर्स आर गोइंग टू बी वेरी सॉलिड इयर्स फॉर योर कंपनी, होपफुली। और सर मुझे यकीन है सर, आपका मैनेजमेंट से ये डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को आप अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करोगे। तो सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने को। मेरी तरफ से सर बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और सर पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।